Hey guys, यार यार ये गेम कुछ ज़्यादा ही टैक्सिंग है. आई थिंक in the highest settings I could not even get like even 50 fps out of RTX 5090, and you know what it is, right? It's like a surprise to me. It's even at like 97% utilization, it could not even give me 50. And that was funny. Okay, इस वीडियो में हम लोग ये एक बार एनालाइज करने की कोशिश करेंगे हाउ दिस गेम बिहेव्स और रन्स ऑन RTX 5090. Multi frame generation is not available on this game right now, which is a big sad news, but maybe in the future it will come up. Um, as you can see, the game is running at 180, 170 FPS, something like that. And this is not even using ray tracing, or maybe at the low settings. So let's start by like tweaking the settings one by one and see how it behaves in different kind of scenarios. Okay, so okay, let's look at these graphic settings. Okay, सो देख रहे हो ये 32:9, 5120 क्वालिटी DLSS. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट करते हैं अल्ट्रा परफॉर्मेंस से. तभी हमें पता चलेगा कि कैसे परफॉर्मेंस ड्रॉप हो रही है एज वी टर्न ऑन द फीचर्स. ओके, एंड DLSS प्रॉबेबली ओके, लेट्स कीप इट फॉर अ वाइल. वी सिंक मैंने बंद कर दिया है. उसके बाद मोशन ब्लर, आई डोंट लाइक दिस, सो लेट्स ब्लर दिस, आई मीन ऑफ दिस. रे ट्रेसिंग टर्न ऑफ कर देते हैं. ठीक है, रे ट्रेसिंग एक अलग ही बीस्ट है, तो लेट्स नॉट इवन गेट स्टार्टेड विद दैट. सो मैंने DLSS ऑन कर रखा है. एंड frame generation, multi-frame generation is not available in this game. Maybe it will come in Jan or something, or maybe not. So let's see what happens. But अभी आप देख रहे होगे I am easily getting around 300 plus FPS, which is more than playable. I think if you have something like 32:9, which is something like a Samsung Neo G9 57-inch, it's going to utilize that, fully utilize the refresh rate of that monitor. But anything lower than that, I think this doesn't make sense. You can like trade this FPS with something with more quality DLSS. Okay, अभी 300 के आसपास DLSS के साथ हमें ये मिल रहा है FPS. लेट्स ट्राई टू रन अराउंड. देख रहे होगे एक्चुअली मुझे रे ट्रेसिंग उतना सेंस नहीं बनाता है. मतलब सी, इट इज़ नॉट दैट बैड. सी द वाटर रिफ्लेक्शंस एंड एवरीथिंग, नॉट दैट बैड, बट ऑफ कोर्स उतना रियलिस्टिक नहीं है, बट इट इज़ फाइन. सी FPS अच्छे खासे आ रहे हैं. अब मैं जाता हूँ यहाँ पे ग्राफिक्स सेटिंग्स में. इफ़ आई टर्न ऑफ द DLSS फ्रेम जनरेशन, देखो ये 220 के आसपास पहुँच गया. और आई थिंक इट इज़ लॉट मोर रिस्पॉन्सिव नाउ. तो दिस इज़ स्टिल एन्जॉयबल. आई मीन दिस इज़ फार मोर देन एन्जॉयबल. ठीक है, तो ये हो गया. अगर मैं फ्रेम जनरेशन ऑन करता हूँ तो आई कोड इजीली गेट लाइक 300 ओवर 300 FPS. आई थिंक फर्स्ट पर्सन स्टोरी बेस्ड गेम्स में आई थिंक यू डोंट नीड लाइक you don't need to turn off the DLSS frame generation. I think I could have much enjoyed the 3x frame generation rather than no frame generation, because it makes your game smooth and you don't need that split second response time. So I think this is fine for first person shooter or something like that. I mean first person shooter story based games. अब आते हैं हम लोग रे ट्रेसिंग पे. रे ट्रेसिंग अगर मैं यहाँ पे लो से स्टार्ट करता हूँ. ठीक है, फ्रेम जनरेशन मैंने ऑफ़ कर रखा है. फ्रेम जनरेशन मैं ऑफ़ ही रखूँगा पूरे वीडियो में. ठीक है, सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद द फ्रेम जनरेशन, द रॉ पावर इन द. ठीक है, फ्रेम जनरेशन मैंने रे ट्रेसिंग ऑफ रखा है, लो रखा है. रे ट्रेसिंग ऑफ पे आई थिंक
अभी भी अच्छा FPS है. इट इज़ नॉट दैट बैड, नॉट दैट बैड रियली. सो यहाँ पे अब मैं यहाँ पे काम करता हूँ, ग्राफिक्स में जाके इसको मीडियम पे करता हूँ. ओके, रिज्यूम. सो यहाँ पे मीडियम पे अच्छा भी दिख रहा है. विजुअल्स आर नॉट दैट बैड एंड I am able to get like 171 FPS. Okay, which is far more than enough, which is good. I like this. I think ये भी reasonable है. ठीक है. With frame generation, let me check. DLSS frame generation is awesome. Actually, I like this tech. 249. If you have Samsung Neo G9, you are under that limit. Okay, so you are going to enjoy this thing. Your full potential of your monitor you're going to use. Okay, this is good. यहाँ पे आते हैं हम लोग ग्राफिक्स और DLSS ऑफ करते हैं और फिर से एक बार आई विल क्रैंक अप द रे ट्रेसिंग टू हाई. एवरीथिंग इज एनेबल्ड. ओके, यहाँ पे देखो तो ये देखो 179 FPS with frame generation. This is with frame generation. And see, the scenes and water reflections and everything is far better here. Okay, and this is awesome. I mean, the game looks awesome. I don't feel the lag, input lag. Let's see. Frame generation off है. Sorry, frame generation off है. And this is ultra performance. I think ये भी अच्छा है एक्चुअली, इतना बुरा नहीं है. ठीक है, एक काम करते हैं, अब हम लोग DLSS को थोड़ा सा क्रैंक अप करते हैं. लेट्स से हाउ इट बिहेव्स इन परफॉर्मेंस मोड. ठीक है. ओके, अब ऊँट पहाड़ के नीचे आया है. ठीक है, फ्रेम 120 के आसपास आ गया है विद हाई रे ट्रेसिंग. ठीक है, यहाँ पे जाते हैं ग्राफिक्स. इफ़ आई मेक इट मीडियम. ठीक है, और अब देखते हैं मीडियम के साथ भी अच्छा चल रहा है. 120 FPS के आसपास चल रहा है. आई डोंट सी मच डिफरेंस when I lowered the ray tracing to medium from high. तो इतना कुछ फ़र्क दिखा नहीं मुझे, बट आई थिंक ठीक है. नो सॉरी, मीडियम. सो I think I saw something. 130 के आसपास, like around you know, at max you can get like 5 frames more in performance mode. Then let's go with balance. I think balance is going to perform worse than this, but इसमें भी 100 FPS आ रहे हैं. ठीक है, and I don't mind getting 100 FPS in this setting. यहाँ पे ग्राफिक सेटिंग्स और जाते हैं. इसको बैलेंस नहीं, फ्रेम जनरेशन अगर मैं ऑन करता हूँ और टर्न दिस ऑन हाई, और मे बी लेट्स सी हाउ इट बिहेव्स हियर. 177 with few fake frames, but I think it is fine. फिर यहाँ पे जाके यहाँ पे मैं इसको अगर हाई कर देता हूँ. ओके, रे ट्रेसिंग हाई है 165. तो पता है मीडियम रे ट्रेसिंग और हाई रे ट्रेसिंग में ज़्यादा फ़र्क नहीं है. यू वोंट लूज लॉट ऑफ फ्रेम्स, लाइक अराउंड 5 to 10 फ्रेम्स यू विल लूज़. हाँ, ऑफ कोर्स अगर तुम्हारा FPS बहुत कम है तो ऑफ कोर्स इट मैटर्स, बट लाइक इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट स्पेशली 120, 100 and more than 150, it is fine. सो यहाँ पे जाते हैं और फिर से अब मैं यहाँ पे ना DLSS को क्वालिटी पे रखता हूँ. ओके, एंड फ्रेम जनरेशन ऑफ कर देते हैं सो दैट वी डोंट गेट कंफ्यूज्ड. DLSS क्वालिटी पे मेरे को मैं मीडियम पे रखता हूँ इसको. एंड देन ओके, आई एम नाउ वी आर टॉकिंग. सी,
95, 90, around like on an average 90, you can take it as 90 frames per second, which is still fine. Okay, मैं फ्रेम जनरेशन अगर ऑन करूँगा तो लेट्स सी, फ्रेम जनरेशन के साथ मेरे पास 140 FPS के आसपास मिल जाता है. स्टिल फार मोर प्लेएबल. ओके, मतलब मैं बस ये सोच रहा हूँ कि if it is behaving in RTX 5090 like this, how it would have behaved in RTX 5070 or like something like more budget oriented cards like 5050 or 5060. 5050 is going, I think we don't have 5050, right? Okay, DLSS quality I think अब इसको high करते हैं. Let's see, resume. Okay, good. यहाँ पे एक मिनट. हाँ, DLSS फ्रेम जनरेशन ऑन है, रे ट्रेसिंग हाई है. मीडियम और हाई में ना उतना डिफरेंस नहीं है, मैं बता रहा हूँ. मतलब आई थिंक यू कैन इग्नोर हाई एंड कीप इट मीडियम इफ़ यू वांट 10 मोर फ्रेम्स और सो, और 5 मोर फ्रेम्स ऑन एन एवरेज, बट यू कैन कीप इट. अगर मैं इसको ये कर दूँ ग्राफिक सेटिंग्स, ठीक है, अब मैं देखता हूँ क्या आता है. सी, आई एम थ्रोन बैक टू 90, even less than that. ठीक है. अरे नहीं भैया, लॉस नहीं हुए हैं, हम फ्रेम चेक कर रहे हैं यहाँ पे. ओके, ठीक है. बट वाटर लुक्स रियली रियलिस्टिक. ओके, अब यहाँ पे ना मैं देखता हूँ अब DLA. दिस इज़ द मोमेंट ऑफ ट्रूथ. ओके, DLA, this is like native rendering. I will kind of turn off. I don't want you to disappoint you guys. Okay, and this is high. Okay, and then if I resume, you can see still playing good. Okay, 93, 92, still playing good. This is the native resolution. Okay, DLSS, DLAA. यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हाई restore settings. I'm getting 90. नॉट बैड. फ्रेम जनरेशन अगर मैं मेरा ऑन ऑफ कर दूँ तो अब देखना, इट स्टार्टेड फीलिंग जिटरी. आई कुड नॉट इवन गेट लाइक 60 FPS. ठीक है, लेट्स सी. बहुत ही बुरा हाल है ये तो, अनमैनेजेबल है. और पता है वर्स पार्ट पता है क्या है, मैं यहाँ पे जाऊँगा अगर जहाँ पे ग्रासेस एंड गार्डन्स हैं वहाँ पे तो भाई और बुरा हाल है. देखो 38 इवन नॉट इवन लाइक 50 FPS. सो दिस इज़ वेरी टैक्सिंग. सॉरी. अगर तुम्हें इम्प्रूव करना है, लेट्स सी स्ट्रेट टू द पॉइंट. अगर ये गेम तुम्हें नेटिव पे खेलना है, ठीक है, I would recommend having frame generation first of all. Frame generation, resume the game. It makes it much more manageable. Okay. ठीक है, ये हो गया. तो पहले तो अभी बहुत मैनेजेबल है, मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है ये, प्लेबल है. I can get like around 60-70 FPS, which is fine, which is good. वो जिटरीनेस चली गई. अगर यहाँ पे मैं इसको अगर देखूँ तो दूसरा ऑप्शन, अगर तुम्हें 100 FPS तक जाना है ना, तो आई वुड रेकमेंड हैविंग लाइक इफ़ यू वांट लाइक हाई, टर्न ऑफ दिस पाथ ट्रेसिंग. ओके,
path tracing is NVIDIA's new technology. Like they call it like the next phase of ray tracing. But what it actually is, like it also tracks जो लाइट बाउंस होके ऑब्जेक्ट से जा रही है, तो इट्स लाइक ट्रेसिंग द पाथ ऑफ द बाउंस्ड लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट. तो इट्स लाइक टू मच टैक्सिंग, सो आई वुड से disable that. ठीक है. Now I am in the safer zone. 100 FPS constant I can easily get. If I cap it, I can maybe frame generation अगर मैं off भी कर दूँ तो it will go around 70 or something. Not bad. Again, ठीक है. 67. Okay, 60 FPS. Okay. So this is how it would feel like. Okay. And for somebody like me who is not a big fan of ray tracing, I can go ahead and turn off this ray tracing forever and easily get 102 FPS, 102 FPS without 100 FPS easily without frame generation. ठीक है. एक बार इस जगह जाके देखते हैं कि how it runs this in this area. यहाँ पे ठीक है. यहाँ पे देखो, यहाँ पे 97 95 के आसपास पहुँच गया है, 100 से नीचे आ गया है फ्रेम्स, एंड यू कैन ईजिली फिगर आउट द डिफरेंस. बट ठीक है, फिर भी आई थिंक हाई पॉलीगॉन मॉडल्स पे रे ट्रेसिंग इज़ काइंड ऑफ वेरी टैक्सिंग. I would say if you want to really use ray tracing, use frame generation, okay, and then maybe if you have ray tracing at high, make it off, okay, ray path tracing को off कर लो. उसके बाद you can easily get this, okay. तो मेरा तो ये recommendation रहेगा. I don't know how the lower tier cards would behave on this game. I wish I had one of like RTX 5070 probably to try out this game on. Unfortunately I don't have it. But please guys let me know how it behaves in lower tier cards. अगर किसी के पास है तो. और let's see. And guys, please support my channel. Please like, share and subscribe to this video, and then I will keep on coming with new contents like this. I try to I'm trying to evaluate this card as much as possible, trying out new games, and we'll keep on doing that. Thanks for being here. अगर तुमने इतनी देर तक वीडियो देख ली है तो which is awesome, and I think it is very informative. यहाँ पे foggy होगा ना जहाँ पे, वहाँ पे लो हो जाएंगे FPS, which is fine. तो तो ये है. ठीक है, चलो, see you in the next one. Bye.